Firstly, I would like to thank all the directors and cast and crew who have gathered us here for both the films. I will just shortly introduce them. They are not on the stage because of COVID protocols, but they are sitting in the front row and are with us in the press conference room. Uh, for the bridge, we have the producer, Mr. Ramakumar Das, and also the lead protagonist, Anindita Das, and lead actress, Shiva Rani Kalita. For the second film, 100 Years of Chrysostom, we have director of photography with us, Mr. Satish Kurup. We welcome all you. First of all, I would like to give a synopsis of the first film, The Bridge. The Bridge is a colorful canvas of an unusual struggle and empowerment of a teenager girl residing at the bank of tributary of the river. The mighty river Brahmaputra of India and its tributaries every year floods out many villages and ruins their cultivation. Still, the people love the river and its green valley. Without a small bridge over its tributary, how troublesome and hard their lives become, only they can feel and understand. Every year after floods, they start a new life again with a great ray of hope and expectation. This film portrays the story of Jonaki, a strong and independent girl who goes through a lot in her life at the young age. The village from where she hails is one of the worst flood-affected regions, and due to lack of the bridge over the river, the entire village suffers a lot. Despite their multiple attempts and prayers, the problem never gets resolved. But still, they start from the scratch every year with a new ray of hope. Thank you, sir, for making this film. Now, I would like to give synopsis of the second film, 100 Years of Chrysostom, a biographical film. The film was completed in a period of 4 years. It's a documentary based on the life of Philippos Mar Chrysostom Mar Thoma Valia Metropolitan, the longest serving bishop of a Christian church in Asia, and one among the longest in the history of Christianity. He became the Mar Thoma Valia Metropolitan in 2007 and was awarded Padma Bhushan in 2018. The film captures the centenarian bishop's life in the background of the genealogy of his Kalamanil family and historical milestones like the Great Flood of 1885. We have with us the director of the film, Mr. Blessy. He's a National Film Award-winning film director and a screenwriter for popular films such as Kajka in 2004, Thanmatra, Palunku, Brahmamaram, and Pranayam. We also have DOP in the audience. The documentary entered the Guinness Book of World Record as the longest documentary film in the world. The 48 hour and 8 minutes documentary broke the previous record of the 21-hour Saudi Arabian documentary, World of Snakes. It took 7 days for Central Board of Film Certification to watch this film and award a Clean U certificate to the film. Sir, that's rather a long film to watch. Yes, yes, that's why I have mentioned it here. Breaking all the records, having this beautiful journey. So that's a beautiful journey of your documentary. 7 days for censor board. Amazing. Thank you. It's a matter of pride and honor that we have sir on the dais with us right now. I would request Mr. Kripal Kalita, the director of The Bridge, to give his opinion on the film and any thoughts about how he made this film, what inspired to make him this film, and his thoughts, please, sir, your thoughts.
हेलो, हाँ, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम आसाम से आया हुए हैं। इंडिया का एक नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है आसाम। ब्रह्मपुत्र रिवर सब लोग जानते ही होंगे। वहाँ में बहुत सारा ट्रिब्यूटरीज होता है, और जो ट्रिब्यूटरीज आता है सब पहाड़ से आता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पूरा पहाड़ सारी और पहाड़ है। इसलिए जो बरसात के मौसम होता है, जून जुलाई होता है, वहाँ में बहुत सारा पानी आ जाता है। इसलिए असम में हर साल बाढ़ होता ही है। जब बाढ़ होता है तो असम का जो डे टू डे लाइफ बहुत ही बिखर जाता है। ये अगर आप लोग खुद आँखों से नहीं देखेंगे, टीवी में देखेंगे या कोई न्यूज़ में देखेंगे, इतना फील नहीं कर पाएंगे जो लोग वो झेल रहा है सालों साल। ये हमने भी झेला है, क्योंकि मैं भी एक गांव का लड़का हूँ। मेरा पिताजी एक फार्मर है, कृषक है। मैं भी बार में जूझा हूँ, लेकिन अभी तक वो जूझ ही रहा हूँ हम। कोई हाल नहीं निकल रहा है। मेरा मन में था कि ये विषय को लेकर, क्योंकि मैं क्रिएटिव लाइन में हूँ, फिल्म लाइन में हूँ, मैं आई एम बिलोंग फ्रॉम थिएटर। मैं सोच रहा था कि कुछ करूँ ये विषय में। इसलिए मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाया था, टाइटल था मेघ। वो मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला। इसके बाद थोड़ा मुझे थोड़ा साहस मिला कि मैं एक फीचर फिल्म बनाऊँ इसके ऊपर। और ये जो फिल्म है हमारा ब्रीज, वो पास, ये आप लोग जैसा रिपोर्टर ही रिपोर्ट ये टीवी में आया और न्यूज़पेपर में आया, पास न्यूज़ है एक्चुअली। ये पास न्यूज़ को हम एक कैरेक्टर के थ्रू ए कैरेक्टर, हर नेम इज़ जोनाकी इन द फिल्म। ये जोनाकी के जीवन के ऊपर लेकर हमने ये फिल्म बनाया। और जोनाकी, उसका बाप बाढ़ में ही मर जाता है। उसका जो भाई है वो हर हाल में ये भाई को वो शिक्षा देना चाहता है, हर हाल में भाई। लेकिन जो नदी है, नदी में ब्रिज नहीं है, इसलिए ये गांव का सारे के सारे लड़की ये कुंवारी ही रह जाती है, क्योंकि गांव में शादी करने के बाहर के लोग कोई नहीं आता। ये हमारा आसाम में ये लाइफ प्रॉब्लम है। ये झूठ-मूठ का बात नहीं है। एक जगह है, सारी जगह में नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगह है ऐसा है, नदी में ब्रिज नहीं है। और ये हर हाल में वो भाई को एजुकेटेड करना चाहता है। वो भाई भी अपना जो पेन है, वो पेन खोल के, वो कपड़ा उतार के, माथे में लेकर किताब लेके वो नदी वो क्रॉस करता है, और उस पार की जो स्कूल है वो स्कूल जाता है। लेकिन हर हाल में वो लड़की जोनाकी चाहता है कि उसका भैया एजुकेटेड होने से थोड़ा उनका थोड़ा सहाय हो जाएगा, उसका लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगा। उसका बाप मर जाता है, ये माँ एपिलेप्सी अटैक्ड है, वो माँ भी मर जाता है। लेकिन वो हर उसका जो उसको एक रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग करने के लिए जाता है, और इमोशनली वो इन्वॉल्व हो जाता है उनसे। और ये पूछता है तुम शादी के बारे में क्या सोच रही हो। लेकिन उल्टा वो लड़की पूछता है कौन मुझे शादी करेगा, यहाँ में तो ब्रिज नहीं है, कोई नहीं आता है, क्या आप मुझे शादी करेंगे। वो रिपोर्टर को पूछता है। रिपोर्टर ये बात सीरियसली लेता है, जो कैरेक्टर मैंने निभाया है एक्चुअली वो फिल्म में। रिपोर्टर थोड़ा इमोशनली वो अटैच हो जाता है। वो शादी करना वो बोलता है कि मैं तुमको शादी करना चाहता हूँ। उसका बाद वो माँ बाप को वो लड़की दिखाने के लिए ले जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आता है कि वहाँ में ब्रिज नहीं है। वो माँ बाप नहीं चाहता है कि जहाँ में एक कनेक्शन ही नहीं है, वहाँ का लड़की को हम बहू कैसे बनाऊं। इसलिए ये नदी के उस पर ही उनका शादी टूट जाता है। ये इसके बाद वो ये उसे इतना सीरियसली नहीं लेता है लड़की। उसका बाद उसका घर टूट जाता है, माँ मर जाता है। उसके बाद ये लास्ट शॉट में दिखाया हमने, जो भाई स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रहा था, वहाँ में एक जो बार के बाद में जो सेंड जो बिखरा होता है, वहाँ में वो भाई को एक बॉक्स मिल जाता है।
वो बॉक्स लेके वो अपनी दीदी के पास आता है, आके बोलता है यहाँ में क्या है खोलो तो। अब ये उनका दीदी बोलता है कि तुम स्कूल जाओ और ये ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो स्कूल जाता है, उसके बाद ये जोना की वो खोलता है। खोलने के बाद वहाँ में हमारा जो आसामीस लोग का ये जो लेडी लोग पहनते हैं मेखला चादर, कुछ मेखला चादर जो ड्रेस है वो लेडी लोग, वो हमारा 2 एक्ट्रेस पहन रहा है अभी, वो मेखला चादर मिलता है, वो कुछ लेडीज़ ऑर्नामेंट्स मिलता है और सिंदूर मिल जाता है। एक सिंदूर का तेमा बोलते हैं हम, वो सिंदूर मिल जाता है। वो सिंदूर देख के भावुक हो जाता है लड़की, और ऐसा एक उसका मन में ये सिंदूर पहनने को इसको मन आया। उल्लास में वो लड़की खुद ब खुद वो सिंदूर ले लेता है। इसके बाद हम ड्रोन शॉट लेके वो पूरा नदी का जो हमारा असम का जो व्यू है हम व्यू दिखाता है, और ये घर बना रहता है, एक नया घर बना रहा है। इसलिए ये फिल्म का ये मोटो है कि लाइफ मस्ट गो ऑन, हर हाल में ज़िंदगी जीना है। ये मेरा भी मोटो है कि हर हाल में ज़िंदगी जीना है, वो हम फिल्म में दिखाया सर। Sir, thank you so much for letting us the details of the film. Thank you, sir. And how you made it. I would now request Mr. Blessy, please, to tell us about this documentary film. Good afternoon. Thank you for your appreciation and good words. Padma Bhushan Dr. Philippos Chrysostom Melia Metropolitan is a living legend. Now he is 103 years old and with a good sense, and he is very famous in his dialogues, stories, everything. He loves and cares and support all regions, not only in Christianity. He is very popular in South India, and also his thoughts and its outlook. He believes God resides in everyone. So I am so much impressed in his philosophy, in policies and his character. That's why I trying to do this venture. Actually, this is my first documentary. I was a feature film director. I done almost 7 films. I got national award and 6 state award also. This documentary section is made one, and it's a very honor and very honor to Padma Bhushan and Dr. Philippos Chrysostom. Thank you. Thank you, sir. We would open the floor for the questions, but I have a question each for one of you. Mr. Kripal Kalita, I would like to ask something about the film. Sure, sir. There are floods in Assam due to Brahmaputra, in Bihar and Assam every year. Yes. And most of the people in India know that. But what gets highlighted in the news is that some of the states which don't suffer floods every year, like if in Kerala or Jammu Kashmir or Mumbai, a flood comes there, it gets highlighted too much in media. But Assam faces this problem every year. Yeah. So was this the reason behind your making of this film, that there should be a permanent documentary or film which can showcase the problems faced by Assam? I would like to know your thoughts on that. सर मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो आपका बात ही मैं जोड़ना चाहता हूँ। जो बिहार में बाढ़ आता है, सब जहाँ बाहर में, जो इंडिया के बाहर में जो बाढ़ आता है, इंडिया के हर प्लेस में बाढ़ आता है, बहुत सारा नेशनल हाइलाइट्स होता है, लेकिन असम का जो बाढ़ आता है इतना हाइलाइट्स नहीं मिलता। पता नहीं वहाँ में कॉरेस्पॉन्डेंट होगा कि नहीं होगा, हमको ये, हम तो बहुत मामूली आदमी है, हमको पता नहीं। लेकिन टीवी में
न्यूज़ चैनल में वो देखने को हमको नहीं मिल रहा है सर। शायद इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी सोच रहा है कि ये नेशनल प्रॉब्लम नहीं है हमारा ये प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम बहुत सालों से जूझ रहा है सर। हमारा जो डेवलप होने वाला था वो डेवलप नहीं हुआ सर बिकॉज ऑफ फ्लड। क्योंकि हम इस साल घर बनाते हैं, इस साल ही टूट जाता है घर, ऐसा होता है। वो मिट्टी आके पूरा हमारे घर को ये दबा देती है। और जो एजुकेशनल सिस्टम है सर, आज भी मैंने फिल्म में जो दिखा है वो है सर। अगर मेरा फिल्म का मोटो भी ये है जो हमारा फिल्म देखे और हमको कुछ उपाय मिले कि हमारा फ्लड का जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन निकाले। और ये सर मैं दावा करता हूँ ये एक नेशनल प्रॉब्लम में शामिल किया जाए। मैं ये फिल्म के थ्रू में ये दावा करता हूँ सर। Okay, sir. Thank you. सर बहुत सारा डिफिकल्टीज Sir, है। sir, we will take the questions from the floor, but I just have one question to Mr. Blessy. Then we will open the floor. Thank you. Sir, when I was researching about the film, I came to know that it was made in a period of 4 years, and the film has an long duration of 48 hours. So I just wanted to ask whether you already had in a mind to make such a big documentary film, or it just happened as you started? Actually, it's happened because I have to capture the different thoughts of Chrysostom Metropolitan. So I engaged with 100 eminent personalities in India, Prime Minister, and also head lord workers, farmers, like in the different kind of I engaged with him, and they will discuss about our social, political, religious situations also. In that way, I have to collect all his thoughts and emotions in that way. Okay, sir. Thank you so much. Sorry for interrupting, sir. You may ask now the question. सर Thank you. मेरा क्वेश्चन ये था कि ये आपने जो फिल्म बनाई, ये अब बाढ़ की समस्या नेशनल प्रॉब्लम है। हम टीवी पे देखते हैं, ब्रह्मपुत्र की बहुत बार देखते हैं, आसाम की बहुत नदियों में बाढ़ आती है, बिहार में भी आती है, देश भर में आती है, लेकिन आसाम में यह नदी की बाढ़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आपने फिल्म बनाई तो इस फिल्म को बनाने में क्या आपने शूटिंग में क्या क्या आपको डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ी और क्या आपने विशेष चीज़ बताई उसके अंदर? सर डिफ़िकल्टीज तो बहुत है बिकॉज आई एम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। और आप लोग जानते हैं कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के पास पैसा नहीं होता है। फर्स्ट तो डिफ़िकल्टीज ये आया है कि हमारे पास पैसा नहीं है। और रमा कुमार दादा जो वन ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, दादा ने कुछ हमको हेल्प किया। लेकिन हमारा फिल्म शूटिंग की ये एक्चुअली 14 मंथ्स हमने ये फिल्म शूटिंग किया है, क्योंकि असम में 6 सीज़न होता है, आप लोग के पता ही होगा शायद। ये हमने फिल्म में 6 सीज़न दिखाया है, इसलिए 6 सीज़न कवर करने के लिए वो बाढ़ का सीज़न, वो जो खेत का सीज़न, खेत ना होने का सीज़न, सारे सीज़न हमने दिखाया। इसलिए हमको बहुत रुक रुक के शूटिंग करना पड़ा। और जो एक बाढ़ का सीन है, सच में हमने एक बाढ़ का सीन में शूट किया था। एक्चुअली 2 मिनट है ये फिल्म में, लेकिन ये फिल्म शूट करने के लिए हमको बाढ़ आने तक रोकना पड़ा। और हम 7 आवर्स पूरा यूनिट बाढ़ में ही डूब के, इतना पानी में डूब के वो शूट करना पड़ा। वो लड़की का माँ मर जाती है ये बाढ़ में। इतना डर था कि कहाँ कितना पानी है हमको पता नहीं था। लेकिन हमने थोड़ा इतना भी प्रोटेक्शन नहीं रख पाए कि गाँव का जो स्विमिंग कर सकता है वो 3-4 लोग हमने रखा कि अगर कोई डूब जाएगा तो हम उसको पिक करेंगे, ऐसा कुछ लोगों को रखा। और ये वो जो शूटिंग हुआ था मैं गुवाहाटी में रहता हूँ, मेरा यूनिट गुवाहाटी में है। और जो शूटिंग हुआ ऊपरी असम बोलते हैं, अपार असम, और गुवाहाटी से नियर अबाउट 500 किलोमीटर। हमको बार बार वहाँ में जाना पड़ता है। एक 10 सेकंड का सीक्वेंस है, वो 10 सेकंड का सीक्वेंस के लिए भी हमको ये जो होनारी सपोरी बोल के एक माजुली, आप लोग जानते ही होंगे, माजुली के ये जो नॉर्थ में इसलिए आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक वेडिंग फोटोग्राफर को लेकर फिल्म करना। और आज
हमें बहुत खुशी मिली कि इंडियन पैनोरामा में ये फिल्म एंट्री हुआ और कंपटीशन सेक्शन में है। इंडिया का 3 फिल्म्स है कंपटीशन सेक्शन में और हमारा फिल्म भी कंपटीशन सेक्शन में। ये सर बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। एक सवाल मैं पूछूंगा, दोनों से एक एक सवाल पूछूंगा। प्लीज फर्स्ट आई वुड लाइक टू क्वेश्चन ब्लेसी जी, how you got inspired making this such a long 48 hours 10 minutes documentary, number one, and then number two, do you get support from government for this, or Ministry of Cultural or Information Broadcasting, or for any ministry from state level or a central level? That is my question to you, so if you can answer this. Actually, the all investment, actually the producer also, myself, nothing from anywhere actually, and also I am too much inspired with his thoughts. That's why I am, because he is now 103, so we have to capture for the next generation his thoughts. Great. Mr. Kripal, सर I would like to ask you, ये आपकी फिल्म ढेर सारे फेस्टिवल्स में गई है, हाँ सर आपने काफ़ी कुछ अवार्ड्स विन किए हैं, सर विनिंग द अवार्ड्स, यू गॉट द, ये ओवरऑल जो भी आपने फिल्म बनाई उसमें आपको ये फिल्म फीचर फिल्म के हैसियत से बनाई है आपने, सर तो ये फिल्म आपने रिलीज़ की है आसाम में? सर रिलीज़ करने वाला था लेकिन कोविड आ गया ओके। इसलिए हमारा आपने सही बात बोला कि हमारा आसाम में एक्चुअली हम बहुत सारे लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम में जूझ रहता है, क्योंकि हमारा पहले अभी नहीं है, लेकिन आसाम इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड पीसफुल प्लेस। बट हमारा वहाँ में क्या होता है, बहुत टेररिस्ट का प्रॉब्लम होता था पहले, इसलिए जो एक टेररिस्ट प्रॉब्लम है, अल्फा ने थोड़ा थ्रेटनिंग दिया था, इसलिए बहुत सारा सिनेमा हॉल बंद हो गया था, क्योंकि हिंदी सिनेमा चलाना नहीं देता था उस टाइम में। मणिपुर में अभी तो हिंदी सिनेमा पूरा की पूरा ही बैंड है, लेकिन आसाम में भी ऐसा सिचुएशन आ गया था कि हिंदी सिनेमा नहीं चलाएंगे। लेकिन इस टाइम में बहुत सारा पॉपुलर सिनेमा हॉल होता है, जो आसामीज फिल्म का पॉकेट होता है, बहुत सारा सिनेमा हॉल बंद हो गया। अभी हमारा पास सिनेमा हॉल भी बहुत कम है, इसलिए हमको बहुत चैलेंज लेना पड़ता है कि हम फिल्म तो बना लेते हैं, लेकिन इतना कम हॉल में चलाएंगे तो भी 1-2 शो मिलता है। अभी तक हमने सर सोच रखा है कि दुर्गा पूजा की आसपास हम ये फिल्म रिलीज़ करेंगे सर हॉल में। थैंक यू सर, थैंक यू। Hello, my name is Siraj Syed. I'm the India correspondent for filmfestivals.com. First question to Mr. Blessy. One is that you made 7 feature films and then made a documentary. Normally it's the other way around. A lot of directors will make 7 documentaries and then make a feature film. So what was the step that you had to take? Secondly, what is the secret of the long life of Mr. Philippos? He's 103 and so active. Actually, I was an assistant director. How can I just add to his question? How difficult was it to make a film on a centenarian person? He may not be in good health also. Actually, I started with documentary in his 98 years. So in that time, we fly to Delhi, so many places in Karnataka, so many places. Yes, that kind of health also. Now also he is very sensible, and but not try to move and all. So actually, I am an assistant director in long years. 18 years I was an assistant director. After that, I started my career as a filmmaker. And this is not actually, it's a documentation only, not for any. Actually, the first time I got the Panorama selection, now only I thought about the biopic entry and all. So this is first time. कृपाल जी, आपसे एक सवाल है कि
आसाम में बाढ़ के कारण बहुत सारे ये टापू हैं, जजीरे हैं जो डूब जाते हैं, घर बह जाते हैं, फिर हर साल बनाते हैं। सर तो रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है हाल में कि माइग्रेशन बहुत सारा हो रहा है। बहुत सारे लोग भारत के अलग अलग शहरों में रोज़ी रोटी के लिए आने लगे हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो उनकी फैमिली बाकी वहाँ रह जाती है उसके ऊपर क्या हो रहा है? सर बहुत सही मुद्दा आपने उठाया। गोवा में ही आपको आसाम का, मेरे गांव का, खुद मेरा जो गांव है, मेरे गांव को ये नियर अबाउट 200 लड़का यहाँ में मिलेगा, आसामीस लड़का मिलेगा जी हाँ। और हम जो भिवंता में हूँ, भिवंता में सारे की सारे सिक्योरिटी लोग आसामीस है, आसाम से है। इसीलिए पूछा। हाँ हाँ सर, ये एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन होता है थोड़ा, ये आसाम में जितना पैसा मिलता है वो गोवा में आगे ज़्यादा पैसा मिलता है। उन लोग बोलता है कि आसाम में आप महीने में 10,000 मिल जाता है, और गोवा में काम करेंगे तो 25,000 मिल जाता है। और केरला में आता है, केरला में बहुत सारा आसामीस लोग हैं, और दिल्ली में है, मुंबई में है, वो काम करने के लिए जाता है। और इस वजह से हमारा जो डेवलपमेंट होने वाला था आसाम का बहुत रुक गया है, क्योंकि वो लोग क्लास 9-10 तक ही पढ़ता है एजुकेशन। वो मैट्रिक का भी, ये जो मैट्रिक भी नहीं पास कर पाता है, वो लोग ये इनकम करने लग जाता है, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन जब बुरा हो जाता है वो घर में भी प्रेशर रहता है, तुम कुछ करो कुछ करो। ये माइग्रेशन प्रॉब्लम हमारा आसाम के लिए, हमारा जो प्रदेश के जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है सर। थैंक यू फॉर ये क्वेश्चन के लिए। थैंक यू वेलकम सर। Hello. सर Kripal ji, सर where did you find your heroine, Jonaki? ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सर। Actually, from मैंने, All India Radio. यस सर, थैंक यू सर। एक्चुअली मैंने जब फिल्म करने के लिए सोचा तो मेरा सबसे ये चैलेंज था कि मैं किसको लूँ ये फिल्म करने के। मैंने एक ये मन में रखा था, ये फिल्म जैसा ना बने। मेरा ये मन में था कि फिल्म जैसा ना बने, ये रियल जैसा बने। इसलिए मैंने जो रेगुलर एक्टर है, हमारा आसाम में बहुत पॉपुलर और टैलेंटेड एक्टर है, आदिल दा, आप लोग जानते हैं आदिल हुसैन, हमारा आसाम से, सीमा विश्वास हमारा आसाम से ही है, और बहुत सारा आर्टिस्ट, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज आर्टिस्ट हमारा आसाम में ही है। वैसे हमारा आसाम में बहुत सारा टैलेंटेड आर्टिस्ट है, लेकिन मैंने सोचा कि जो लोग रेगुलर एक्टर है उनको मैं ना लूँ। क्योंकि वो लोग सारे की सारी एक्टिंग वो जान जाता है। इसलिए मैं सोचा कि मैं थोड़ा जो मेरा कैरेक्टर के हिसाब से मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। और जो ये गांव में गया, गांव में जाकर मैं कहीं अपलोड नहीं किया कि मुझे एक एक्टर चाहिए, मुझे एक एक्ट्रेस चाहिए, मैंने कहीं अपलोड नहीं किया। मैंने ऐसे घूमा कि यहाँ में ड्रामा करते हैं लोग, यहाँ में कॉलेज में जाके कोई किसी को बोलते हैं, प्रोफेसर लोगों को कि आप लोग या जो एक्टिंग में इंटरेस्ट है सबको बुला लीजिए प्लीज़। सब लड़की लोग आता है, वो हमें स्क्रीन टेस्ट किया था, वो भी स्क्रीन टेस्ट से ही मैंने करीबन 300 लड़की को देखा, और ये 300 लड़की से ये जोनाकी निकल के आए सर। कृपाल जी, पहले तो बधाई हो, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे फिल्म बनाई है जो काफ़ी बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करती है। जैसा कि आपने बताया, बहुत ही सीमित संसाधनों में आपने इस फिल्म को बनाया है। गिवन अ चांस, अगर आपको कोई एक अच्छा प्रोड्यूसर मिले, एक ऐसे सब्जेक्ट को जो पूरे इंडिया को क्या और बाहर विदेशों में भी पता चले, क्योंकि आसाम क्या उसके आसपास के राज्य भी प्रभावित होते हैं, और कोई बड़ा स्टार मिले, तो क्या आप इसको कमर्शियल तौर पर इस फिल्म को बनाना चाहेंगे? ये फिल्म जी, मतलब इस इशू को, क्योंकि आसाम, जैसा कि जो सर बैठे हैं उन्होंने भी इस बात को की तरफ एक उठाया था मुद्दा कि आसाम में ये जो बाढ़ आता है, इवन आप भी इससे काफ़ी साल से जूझ रहे हैं पर्सनली, लेकिन बाकी जो प्रदेश हैं या देश के लोग हैं उनको उस तरीके से इसके बारे में पता नहीं होता या इम्पैक्ट नहीं होता उसका। तो क्या अगर इसको बड़े कॉमर्शियल लेवल पर इस फिल्म को बनाया जाए, इस सब्जेक्ट को, तो आपको नहीं लगता कि बाकी देश में भी या विदेशों में भी इस स्थिति को उसको जानने का मौका मिलेगा लोगों को? थैंक यू सर फॉर योर क्वेश्चन। एक्चुअली मेरा मन में एक क्वेश्चन है, मेरा मन में एक आशा है
हमारा आसाम को जिसने बनाया साओलुंग सुकाफा 600 ईयर्स बिफोर, जो माओलुंग से आता है, जो थाईलैंड से आकर जो वो एक्चुअली टाई था, वो टाई लोग था, वो आकर वो आसाम को बनाया। उसके विषय में मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ सर। वो भी बाढ़ से जूझा था, क्योंकि वो साओलुंग सुकाफा आकर जहाँ में वो अपना राजधानी बनाया, वो भी बाढ़ में हर साल टूट जाता था। इसलिए गौरगांव बोल के एक शिवसागर में ये प्लेस है, वहाँ में गौरगांव में परमानेंटली वो ये हमारा जो आसाम की जो पहले वाला राजधानी हुआ बा, वहाँ में भी बाढ़ आता है सर। अगर बाहुबली जैसा कोई प्रोड्यूसर मुझे मिल जाएगा तो सर ज़रूर मैं ये साओलुंग सुकाफा बनाना चाहता हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। Any more questions? Okay, thank you so much for your time and your thoughts on the film and for making these films, which I think Mr. Blessy sir has very well documented, and I am hopeful that future generation will watch it and have immense sense of knowledge and wisdom from the documentary film, sir. I think that was the first purpose for which you made the film, and that's why the length that what is I understood from the today's press conference. And Mr. Kripal Kalita sir, thank you for telling us in detail about the problems of Assam, which you have also tried to showcase in the film. I think that it will be well noticed and recognized the problems and issues faced by the people of Assam after coming into your film coming into the IFFI. Thank you for making this film. थैंक यू सर। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सर। मैं इंडिया में ये बेंगलोर में, दिल्ली में और या जगह जगह में मैं ये फिल्म रिलीज़ करना मेरा मन है। मैं ये थ्रू प्रेस के थ्रू में ये लोगों के ये बताना चाहता हूँ कि जब थिएटर में आएगा तो प्लीज़ हमारा फिल्म देखे और हमको थोड़ा प्रेरणा दे। और आपको बहुत थैंक यू सर, और स्पेशल थैंक्स यू वेयरिंग द आवर गामोसा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू all of you. Thank you. We conclude today's press conference. Thank you.